we are here. I have a show here. I am performing in Chembur Gymkhana, and the basic purpose is like this is for MTV Unplugged with Royal Stag. You all must have heard of this property of MTV, which is a very popular platform of presenting songs the way you'd like to hear in a different way than it's in the audio. For me, I was very excited about doing Unplugged for the song Kamli, because I actually conceived Kamli as a very soft song. Later in Dhoom 3, it went as a like a dance song. Like this, many songs you conceive in a very, because I compose with my guitar, and it's just only one guitar which I compose with, and the form the song is in, and while it goes into the final stage there are lots of orchestration are added in it. So to play the songs in its raw stage and to play it differently than it's in the audio, that's the specialty of this platform, where you can present the songs in your the way you want to present. I'm extremely happy to be a part of MTV Unplugged. I have been wanting to be a part of MTV Unplugged for very long. For last 2 seasons we have been discussing the possibility of being a part of MTV Unplugged, but this year it has happened, and I will be closing the series. This season I'll be closing this season. My episodes will be up on 13th of February, hopefully, if I deliver on time. But I have short last, so it's I should end it. I'm extremely thankful to MTV. I'm thankful to everybody of MTV, including Jaggi, who actually waited and kept the set standing, because I delayed. I was busy with Dilwale Master, and after the Master finished I jumped into it. And MTV, everybody at MTV, and MTV was kind enough to keep the set standing and incorporate my episode in this season, and I am very happy with what I have done, and I hope you enjoy it when it comes on air on 13th of February. दादा, आप जानना चाहेंगे आपसे कि आप इतने सारे इवेंट्स करते हैं और दिलवाले का म्यूजिक इतना बड़ा हिट हुआ है, तो एक आपकी कितनी बड़ी कोशिश रहती है कि आप एक इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल अलग कर पाएँ, और जो भी आपकी कंपोजिशंस है एक बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इतना ये सब बैलेंस कैसे कर पाते हैं? इवेंट में उतना अलग नहीं कर सकते, बिकॉज एक बैंड है, उनका प्रैक्टिस होता है, सबका काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट what everybody plays together. But isme I am because of it's a unplugged this is for MTV Unplugged. I'm not doing Unplugged here because it's the setup is not unplugged, but I'm doing lot more softer songs. I do in my other events I do more dance songs. Here I'm doing lot more romantic songs. काफी रोमांटिक गाने कर रहे हैं इधर. दादा, जानना चाहेंगे आपसे कि इतने सारे लाइव परफॉर्मेंसेस करने के बाद आपको कोई भी एक चीज़ कमी किसकी खलती है कि ऐसा भी मैं कर सकता था? इवेंट के बाद आप सोचते हैं ऐसा कि कुछ ऐसा भी हो पाता या? बहुत कुछ वो एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंस लाइक प्रोडक्शन ऑफ लाइव परफॉर्मेंस हम लोग थोड़ा अभी भी काफ़ी पीछे है, बिकॉज हम लोग के पास उतना बजट नहीं होता है. बट ऑब्वियसली ये मैं ड्रीम करता हूँ कि एक दिन हमारे पास उतना बजट होगा कि हम एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा होना चाहिए. पिंक फ्लॉयड जैसे कॉन्सर्ट करते थे आजकल, कोल्ड प्ले जैसे कॉन्सर्ट करते हैं वैसे, या मैरून 5 जैसे कॉन्सर्ट करते हैं वैसे, एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी कॉन्सर्ट
रॉक कॉन्सर्ट जैसा होता है वैसा करने का ड्रीम है जो लाइक करना चाहता हूँ। लाइव कॉन्सर्ट्स के दौरान ऑडियंस का रिएक्शन कितना मायने रखता है आपके लिए? जैसे वो खुश होती है तो क्या आपके गाने पर भी इसका असर पड़ता है? बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। एक्चुअली मैं ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस पहले नहीं करता था। आई स्टार्टेड डूइंग लॉट मोर लाइव गिग्स नाउ। ऑडियंस रिएक्शन से एक हाई मिलते हैं, जो एक बोलते हैं एक नशा सा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब द ग्रेटिफिकेशन ऑफ बीइंग in the studio constantly and giving constant hits, उसका जो एक gratifying experience जो उसका रिएक्शन मिलता है लाइफ में, वो ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है और वो बहुत इंस्पायरिंग होता है। हम आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपकी कोई पर्सनल एल्बम जो आपको पर्सनल जो फेवरेट कंपोजिशन जो आप फिल्मों में नहीं डाल पाते हैं, कोई भी एक आपका जो आपने सोचा होगा ये कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी है बट ये उस थीम से नहीं जा रही है, तो ऐसी भी आपकी पर्सनल एल्बम सुन पाएंगे आने वाले टाइम में कोई? ये मैं हर साल ड्रीम करता हूँ कि एक पर्सनल एल्बम, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है अभी। फिल्में इतने हैं और उसका डिलीवरी भी बहुत है और उसकी वजह से टाइम कम मिलता है। बट डेफिनेटली मेरा माइंड में है कुछ एक खुद का एल्बम निकालना, और वो जल्दी आप सुन पाएंगे। जान पाएंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, सॉफ्ट नंबर्स होंगे, रोमांटिक नंबर्स होंगे? ये हर तरह का आइडियाज़ है। अभी जो आइडिया लेके आगे बढ़ेंगे और एल्बम बनाएंगे तब मैं बोल सकता हूँ। अभी टू अर्ली है। अभी तो मेरा इस साल 5 रिलीजेस है, वो रिलीजेस का सब गाने रेडी करने में मेरे को पूरा साल निकल जाएगा। जानना चाहेंगे आपसे कि फिल्म के अकॉर्डिंग आप म्यूजिक देते हैं या जो आपका दिल करता है वो कंपोजिशन आप निकालते हैं? नहीं, एकदम फिल्म के अकॉर्डिंग म्यूजिक देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर हो, फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर हो, तब वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जैक्टली जो डिमांड करता है फिल्म ऐसे करो। तो इसीलिए अगर मैं लव आजकल का म्यूजिक कर रहा हूँ, उसमें मैं बर्फी जैसा म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वैसा फिल्म का जो दायरा होता है वो एक आपको डिफाइन कर देता है कैसा म्यूजिक होगा। जैसे लव आजकल में कैरेक्टर्स पंजाबी थे, लाइक वीर सिंह और सब पंजाबी थे, तो लव आजकल का म्यूजिक का इन्फ्लुएंस काफ़ी पंजाबियत है उसमें, काफ़ी पंजाबी इन्फ्लुएंस है उसमें। वेयरएज बर्फी वाज बेस्ड ऑन कैलकाटा 1970s दैट टाइम, लाइक सो उसका थोड़ा सा मीठा लाइक लिटिल ओल्ड स्कूल चार्म वैसा रखना पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू द मूवी हर फिल्म का म्यूजिक चेंज होता है, कैरेक्टर्स चेंज होता है। जैसे मेरा भी म्यूजिक टेम्पलेट चेंज करना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो फिल्म में फिट नहीं होता है। और मैं ये नोटिस किया हूँ फिल्मी म्यूजिक के लिए, स्पेशली फिल्म म्यूजिक के लिए, अगर कोई गाना आपके फिल्म के साथ नहीं जाता है तो वो गाना उतना एस्टैब्लिश नहीं करता, ना वो फिल्म को हेल्प करता है ना फिल्म उसको हेल्प करता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप गाना हमेशा जब बना रहे हो फिल्म के लिए, वो फिल्म के साथ जुड़े हुए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानना चाहेंगे आपसे कि कभी कंपोजिशंस को लेकर या स्टोरी लाइन को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जो आपकी पसंद रही हो या आपको लगता है ये फिट है और फिर भी उस कंपोजिशन को जगह नहीं मिलती, तो कितना मुश्किल हो जाता है? कभी कभी होता है कि गाने जो बहुत पसंद है वो बाउंस हो जाता है, कि मैं लड़ता हूँ उसके लिए, नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट उसके कुछ हद के बियॉन्ड नहीं लड़ सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इज द डायरेक्टर्स मूवी, हिज विजन इज ऑल्सो अल्टीमेट। सो हमेशा मैं ये बोलता हूँ और ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी फिल्म म्यूजिक एक म्यूजिक डायरेक्टर का हाथ नहीं होता है। अ फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन द म्यूजिक डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर। ये कोलैबोरेशन जब वर्क करता है तब आपका म्यूजिक सक्सेसफुल होता है। और ये कोलैबोरेशन आप जितना भी see, I am the same person giving music for multiple films. Lot of time the collaboration works, lot of time it doesn't work. Thank you. Yeah, thank you everybody.